اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز، اعداد کا موازنہ اور ترتیب یعنی کمپیئرنگ اینڈ آرڈرنگ نمبرز۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے نمبر 1 چھوٹے اور بڑے اعداد کا موازنہ، کمپیریزن آف اسمالر اینڈ گریٹر نمبرز۔ نمبر 2 اعداد کی ترتیب صعودی اور ترتیب نزولی، اسینڈنگ اینڈ ڈسینڈنگ آرڈر آف دا نمبرز۔ السلام علیکم بچوں، ویلکم ٹو مسٹر فیراڈیز کلاس روم۔ آج ہم کلاس 4 کی میتھمیٹکس کے چیپٹر نمبر 1 کمپیئرنگ اینڈ آرڈرنگ نمبرز یعنی اعداد کا موازنہ اور ترتیب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جب آپ اعداد کا موازنہ اور ان کی ترتیب کرتے ہیں تو آپ لیس دین یعنی چھوٹا، گریٹر دین یعنی بڑا اور ایکول یعنی برابر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اعداد کا موازنہ کرنے کے لیے پہلے ہر نمبر میں ہندسوں کی تعداد دیکھیں، اس کے بعد اعداد کی مقامی قیمت کو ایک ہی ہندسے کے ساتھ موازنہ کریں۔ آئیے پہلے ہم ٹیکسٹ بک سے کمپیئرنگ اینڈ آرڈرنگ نمبرز یعنی اعداد کا موازنہ اور ترتیب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 1.3 اعداد کا موازنہ اور ترتیب۔ احمد کے پاس 22 اور علی کے پاس 15 ٹافیاں ہیں، کس کے پاس زیادہ ٹافیاں ہیں؟ 22 بڑا ہے 15 سے۔ ہم اعداد کا موازنہ ان کی سب سے بڑی مقامی قیمت کو دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ 2 بڑا ہے 1 سے، اس لیے 22 بڑا ہے 15 سے۔ ہم ان کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 22 گریٹر دین 15، بس احمد کے پاس زیادہ ٹافیاں ہیں۔ جب اعداد کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم پہلے ان ہندسوں کا موازنہ کرتے ہیں جن کی مقامی قیمت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ جس عدد کے ہندسے کی مقامی قیمت سب سے بڑی ہوتی ہے وہ بڑا عدد ہوتا ہے۔ مگرمچھ کا بند منہ چھوٹے عدد کی نشاندہی کرتا ہے، مگرمچھ کا کھلا منہ بڑے عدد کی نشاندہی کرتا ہے۔ کون سا عدد سب سے بڑا ہے، 198 یا 328؟ آئیے سب سے بڑی مقامی قیمت والے ہندسوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ 300 بڑا ہے 100 سے، بس 328 بڑا ہے 198 سے۔ ان کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے 328 گریٹر دین 198۔ اب ہم ٹیبل کی مدد سے بھی اس کا موازنہ دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ٹیبل پہ 3 کالمز موجود ہیں، جن میں سے پہلا کالم اکائیاں، دوسرا کالم دہائیاں اور تیسرا کالم سینکڑے کو ظاہر کرتا ہے۔ 198 میں 8 اکائیاں، 9 دہائیاں اور 1 سینکڑے ہیں، جبکہ 338 میں 8 اکائیاں، 2 دہائیاں اور 3 سینکڑے ہیں۔ ٹیکسٹ بک کے مطالعے کے بعد اب ہم کمپیریزن آف نمبرز یعنی اعداد کے موازنے کو سمجھنے کے لیے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کمپیریزن آف نمبرز، اس کو مزید خزانہ کہاں ملے گا؟ یہ جاننے کو کہ بالی کو مزید خزانہ کہاں ملے گا، اس کو 2 نمبرز کمپیئر کرنے ہیں تاکہ پتہ چلے کون سا نمبر بڑا ہے۔ چلیں نمبروں کو کمپیئر کرنا سیکھتے ہیں۔ یہاں 2 نمبرز ہیں 2510 اور 760۔ ہندسوں کو گنیں، ان میں مختلف ہندسے ہیں۔ کمپیئر کرنے کا اصول، زیادہ ہندسوں کا مطلب ہے بڑا نمبر۔ 2510 میں 4 ہندسے ہیں اور 760 میں 3 ڈیجٹس ہیں۔ یہاں 2510 میں 760 سے زیادہ ڈیجٹس ہیں، چنانچہ 2510 760 سے بڑا ہے، تو بالی کو اس طرف جانا چاہیے۔ اس کو کب مزید خزانہ ملے گا؟ کیا آپ کے پاس غبارہ ہے؟ اب ہمارے پاس 35,811 اور 6,905 ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا بڑا نمبر ہے؟ ڈیجٹس کو گنیں۔ 35,811 میں 5 ڈیجٹس ہیں، جبکہ 6,905 میں 4 ڈیجٹس ہیں۔ چنانچہ اصول کے مطابق 35,811 میں زیادہ ڈیجٹس ہیں اگر 6,905 سے کمپیئر کریں۔ 35,811 بڑا ہے 6,905 سے۔ بہت اچھے،
आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखते हैं अब बॉली क्या करता है। उम्मीद है कि आप कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यानी आदाद का मवाजना करना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलें एक और एनिमेटेड वीडियो देखते हैं जिसमें हम कंपेयरिंग 7 डिजिट नंबर यानी 7 आदाद का मवाजना करेंगे। आइए इसको समझते हैं। कंपेयरिंग 7 डिजिट नंबर्स। सिंप्लीफाइंग ऐसा तरीका है जिसमें नंबरों को छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। यहाँ पर दिए गए 7 आदाद के नंबर को इस तरह सिंप्लीफाई किया जाता है कि पहले आप ऊपर प्लेस वैल्यू कॉलम लिखेंगे हर डिजिट के ऊपर, जैसा कि दिखाया गया है। अब हम इसको यूं आसान बना सकते हैं कि ये 1 मिलियन प्लस 200,000 प्लस 3 टेंस ऑफ थाउजेंड्स प्लस नॉट थाउजेंड्स प्लस 500 प्लस 5 टेंस प्लस 2 यूनिट्स लिखेंगे। नोटिस करें कि कैसे 1000 कॉलम में 0 के पास भी प्लेस वैल्यू है। इस नंबर में 0 थाउजेंड्स हैं, मगर हम इसको भी यहाँ शामिल करेंगे ताकि इसके बाद 552 वाला नंबर प्लेस वैल्यू के कॉलम में सही तरीके से लिखा जा सके। अक्सर हमें किसी नंबर को कंपेयर या ऑर्डर करने की जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए हम प्लेस वैल्यू कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको बताया जा सके कि हर अदद किसकी नुमाइंदगी करता है, ताकि हम जल्दी से ऑर्डर और कंपेयर कर सकें। एक मिसाल देखें। इन नंबर्स को छोटे से बड़े की तरफ लिखें। इन नंबरों को कंपेयर करने के लिए हम हर अदद को लेबल करना शुरू करते हैं ताकि प्लेस वैल्यू कॉलम को ठीक लिखा जा सके। हमें पहले ही पता है कि हम 7 हिस्सों के नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, चुनाचा हम किसी भी तरफ से इन आदाद को लेबल करना शुरू कर सकते हैं। ताहम इंतहाई दाएं जानिब से लेबल लगाना एक अच्छा तरीका है और बाएं जानिब बढ़ते जाएं। इंतहाई दाएं जानिब से शुरू करते हुए हमारे पास यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस हैं। अब चूंकि हम नंबर को ऑर्डर कर रहे हैं, ये देखते हुए कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू कॉलम है, तो ये इंतहाई बाएं जाने वाली कॉलम है, जो कि इस केस में मिलियन कॉलम है। सबके मिलियन कॉलम में अदद 2 है, मतलब हमारे पास कम से कम हर नंबर में 2 मिलियन हैं। इसकी मदद से तो हम इनको ऑर्डर नहीं कर सकते, तो अगली प्लेस वैल्यू कॉलम देखेंगे, जो कि अगली सबसे छोटी प्लेस वैल्यू कॉलम है। ये 100 ऑफ थाउजेंड्स कॉलम है। इनको कंपेयर करें। 100 ऑफ 1000 कॉलम में सब आदाद 3 हैं, मतलब हमारे पास हर नंबर में कम से कम 2,300,000 है। जैसा कि ये सारे नंबर एक जैसे हैं, तो ये हमें तरतीब देने में मदद नहीं कर सकते। चुनाचा हम दाएं जानिब अगली प्लेस वैल्यू कॉलम देखेंगे, जो कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स कॉलम है। डिजिट को कंपेयर करें। यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे छोटा अदद 0 है। चुनाचा 2,309,950 सबसे छोटा नंबर है। अगला सबसे बड़ा नंबर 1 है। चुनाचा 2,318,461 अगला बड़ा नंबर है। बाकी 2 नंबर बचे हैं जिनकी प्लेस वैल्यू कॉलम टेंस ऑफ थाउजेंड्स में अदद 4 है, तो हमें प्लेस वैल्यू कॉलम 1000 में देखना है। 1000 कॉलम में देखते हुए यहाँ सबसे छोटा अदद 0 है। चुनाचा इस तरतीब में 2,340,950 अगला बड़ा नंबर है। बाकी बचे 2,348,000 और 32 इस तरतीब में सबसे बड़ा नंबर है। चुनाचा छोटे से बड़े नंबर की तरफ लिखते हुए हमारे पास 2,309,050, 2,318,461, 2,340,950 और 2,348,032 है। अब आप खुद 7 आदाद के नंबर को कंपेयर और ऑर्डर करें, जो आपको इस वर्कशीट में अमली सवालात में मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कंपेयरिंग 7 डिजिट नंबर यानी 7 आदाद का मवाजना करना आ गया होगा। तो आइए अब हम इस वीडियो से मुतल्लिक कुछ सवाल हल करते हैं। आदाद का मवाजना कीजिए और दिए गए खानों में छोटा या बड़े की इलामात लगाएं। सबसे पहले हमें इसमें 2 आदाद दिए गए हैं। वो आदाद 345 और 1806 हैं। अब इसमें देखना यह है कि इनके दरमियान कौन सा साइन आएगा, यानी इसमें छोटे आदाद कौन से हैं और बड़े आदाद कौन से हैं। जरा सोचिए, इसके दरमियान में कौन सा साइन आएगा? जी हाँ, इनके दरमियान लेस देन यानी छोटा है का साइन आएगा। इसका मतलब यह है कि 345 का अदद छोटा है 1806 के अदद से।
بہت اچھے بچوں، آئیے اب اگلا سوال حل کرتے ہیں۔ اس سوال میں عدد 6890 اور عدد 6017 کے درمیان کیا آئے گا؟ ذرا سوچئے۔ جی ہاں، ان کے درمیان گریٹر دین یعنی بڑا ہے کی علامت آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے 6890 کا عدد بڑا ہے 6017 کے عدد سے۔ بہت خوب، آئیے اب اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ اس سوال میں عدد 23765 اور عدد 12799 کے درمیان کون سا سائن آئے گا؟ ذرا غور کیجئے اور سوچئے۔ جی ہاں، اس میں گریٹر دین یعنی بڑا ہے کی علامت آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 23765 عدد بڑا ہے 12799 کے عدد سے۔ آپ بہت سمجھدار ہیں، ویل ڈن۔ آئیے ایک اور سوال دیکھتے ہیں۔ اس سوال میں 11345 اور 13345 کے درمیان کون سا سائن آئے گا؟ ذرا سوچئے۔ جی ہاں، ان کے درمیان لیس دین یعنی چھوٹا ہے کی علامت آئے گی، یعنی 11345 کا عدد چھوٹا ہے 13345 کے عدد سے۔ بہت خوب بچوں، لگتا ہے اب آپ کو کمپیرنگ نمبر کے کانسیپٹ کی سمجھ آ گئی ہے۔ آئیے مزید ایک سوال دیکھتے ہیں۔ اس سوال میں 1,32,302 اور 4,32,411 کے درمیان کون سا سائن آئے گا؟ ذرا سوچئے۔ جی ہاں، ان کے درمیان لیس دین یعنی چھوٹا ہے کی علامت آئے گی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 1,32,302 کا عدد چھوٹا ہے 4,32,411 کے عدد سے۔ اس سب سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو کمپیرنگ نمبر کے کانسیپٹ کی سمجھ آ چکی ہے۔ بہت خوب بچوں، آئیے اب آگے اس کو ایسے ہی مکمل کرتے ہیں۔ آئیے اب مزید ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کمپیرنگ اینڈ آرڈرنگ نمبرز یعنی اعداد کی ترتیب اور موازنہ کرنا سیکھیں گے، جس سے آپ کا کانسیپٹ مزید بہتر ہو جائے گا۔ کمپیرنگ اینڈ آرڈرنگ نمبرز 2000۔ اس سیٹ میں بڑی تعداد والا نمبر تلاش کریں۔ یہاں 437 دہائی اور 7 اکائی ہے۔ یہاں 437 بلاکس ہیں اور اس سیٹ میں 501 دہائی اور 5 اکائیاں ہیں۔ یہاں 515 بلاکس ہیں۔ نمبرز کا موازنہ کرتے ہیں۔ ہم ہندسوں میں 100 کی جگہ کا موازنہ کرتے ہیں۔ 4 چھوٹا ہے 5 سے، 5 بڑا ہے 4 سے۔ اس طرح 515 بڑا ہے 437 سے۔ اس سیٹ میں چھوٹی تعداد والا نمبر تلاش کریں۔ یہاں 600 4 10s اور 8 1s ہیں۔ یہاں 648 بلاکس ہیں۔ 649 بلاکس ہیں۔ ہندسوں میں ہنڈریڈز کی جگہ کا موازنہ شروع کرتے ہیں۔ 6 کے ہندسے ایک جیسے ہیں۔ ہم 10 پلیس کے ہندسوں میں موازنہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ 4 برابر ہے 4 کے، یہ ہندسے بھی ایک جیسے ہیں۔ اس طرح ہم اکائی کے ہندسوں میں موازنہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ 8 چھوٹا ہے 9 سے، اس طرح 648 چھوٹا ہے 649 سے۔ چھوٹے سے بڑے نمبرز کی ترتیب، چلو شروع کرتے ہیں۔ ہر نمبر میں ہنڈریڈز کی جگہ کا ہندسوں میں موازنہ۔ 4 3 اور 5۔ 3 چھوٹا ہے 4 سے اور 5 سے، اس طرح 386 چھوٹا نمبر ہے۔ چلو آخری دو نمبرز ہنڈریڈز کی جگہ کا ہندسوں میں موازنہ کرتے ہیں۔ 4 چھوٹا ہے 5 سے، 5 بڑا ہے 4 سے، لہٰذا 545 بڑا نمبر ہے۔ چھوٹے سے بڑے نمبرز ہیں 4 5 5 386 اور 545 بڑے سے چھوٹے نمبرز کی ترتیب۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ ہنڈریڈز کی جگہ کا ہندسوں میں موازنہ۔ ہر نمبر میں 9 8 7 اور 9۔ 7 چھوٹا ہے 8 اور 9 سے، لہٰذا 785 چھوٹا نمبر ہے۔ 8 چھوٹا ہے 9 سے، لہٰذا 829 اگلا چھوٹا نمبر ہے۔ اب ایک جیسے ہندسوں میں ہنڈریڈز کی جگہ کا موازنہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں 9 ہیں، 2 اور 8۔ 2 چھوٹا ہے 8 سے، لہٰذا 922 اگلا چھوٹا نمبر ہے۔ 982 بڑا نمبر ہے۔ ہم نے بڑے سے چھوٹے نمبرز کی طرف ترتیب کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب کمپیرنگ اینڈ آرڈرنگ نمبرز یعنی اعداد کی ترتیب اور موازنہ کرنا آ گیا ہوگا۔ آئیے اب ایک اور سوال دیکھتے ہیں اور آرڈر نمبر یعنی اعداد کی ترتیب کو سمجھتے ہیں۔ نیچے دیے گئے سوال کو اسینڈنگ آرڈر یعنی ترتیب سعودی میں ترتیب دیجیے۔
जैसा कि हम जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर यानी तरतीब सऊदी में हम छोटे एदाद पहले और बड़े एदाद आखिर में लिखते हैं। आइए इसको हल करते हैं। हमारे पास 238, 141 और 634 आदाद दिए गए हैं। इनकी तरतीब सऊदी क्या होगी? जरा सोचिए। जी हाँ, इन एदाद की तरतीब कुछ यूं होगी। पहले सबसे छोटा अदद 141 आएगा, फिर दूसरे नंबर पे इससे बड़ा अदद 238 आएगा और आखिर में सबसे बड़ा अदद 634 आएगा। तो ये थी हमारी तरतीब सऊदी। बहुत खूब बच्चों। आइए तो अब एक और सवाल देखते हैं। अब हमारे पास दिए गए अदद 53,231, 23,451 और 99,864 हैं। अब बच्चों इनको तरतीब सऊदी में लिखें। बताएं कैसे लिखेंगे? जी हाँ, सबसे पहले छोटा अदद आएगा जो कि 23,451 है। उसके बाद इससे बड़ा अदद आएगा जो कि 53,231 है और इसके आखिर में सबसे बड़ा अदद यानी 99,864 आएगा। बहुत अच्छे बच्चों, आप तो बहुत ज़हीन हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको तरतीब सऊदी की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आइए अब एक और सवाल देखते हैं जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी तरतीब नज़ूली को समझते हैं। तरतीब नज़ूली में हम सबसे बड़ा अदद पहले लिखते हैं और सबसे छोटा अदद आखिर में लिखते हैं। आइए इसका सवाल हल करते हैं। इसमें 3 आदाद दिए गए हैं जो कि 238, 141 और 464 हैं। इनको तरतीब नज़ूली में तरतीब दें। जी हाँ बच्चों, इसकी तरतीब कुछ यूं होगी। सबसे पहले सबसे बड़ा अदद आएगा जो कि 664 है। इसके बाद इससे छोटा अदद आएगा जो कि 238 है और आखिर में सबसे छोटा अदद आएगा जो कि 141 है। बहुत खूब बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको तरतीब नज़ूली की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम आपको इस टॉपिक से मुतल्लिक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन दिखाने लगे हैं। कंपेयर नंबर्स। अली एक शॉप पर फ्रूट्स लेने के लिए खड़ा है तो उसे समझ नहीं आ रही कि इनमें से सबसे कम कीमत का फल कौन सा है। वो संतरे खरीदे या सेब। संतरे की कीमत 250 रुपए है और सेब की कीमत 300 रुपए है। आइए ये जानने के लिए एक गेम खेलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 साइन बोर्ड्स हैं। पहले हम सीखते हैं कि इसको कैसे खेलना या समझना है। इस डायल को घुमा के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेब यानी एप्पल किस साइड पे कम है और किस साइड पे ज़्यादा है। चलें डायल को बाएं यानी लेफ्ट की जानिब घुमाते हैं तो बाएं जानिब 3 सेब हैं और दाएं जानिब 2 सेब हैं। तो ये इलामत बड़े की है क्योंकि 3 सेब ज़्यादा हैं 2 सेब से। यहाँ पे दोनों तरफ सेब बराबर हैं तो ये बराबर की इलामत को जाहिर करता है। अब फिर डायल को घुमाएं तो अब दाईं जानिब सेब ज़्यादा हैं बाएं जानिब से, तो ये छोटा यानी लेस देन की इलामत को जाहिर करता है। अब स्टेप 2 पे क्लिक करते हैं। इसमें मैथमेटिकल रिलेशंस के बारे में बताया गया है। अब आपने इन सिंबल्स को उठा के इनके सही बॉक्स में रखना है। ग्रेटर के सिंबल को ग्रेटर के बॉक्स पे रखेंगे। इक्वल का सिंबल इक्वल के बॉक्स पे रखें। लेस का सिंबल लेस के बॉक्स पर रखें। आइए अब आगे चलते हैं। आइए अब इसकी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ग्रेटर पे क्लिक करते हैं। इस बॉक्स पे क्लिक करें जिसमें अशिया की ज्यादा तादाद मौजूद हो। 5 बॉल्स ज्यादा हैं। जी हाँ, ये दुरुस्त जवाब है आपका। अब इस बॉक्स में बाएं जानिब 2 टॉफियां और दाएं जानिब वाले बॉक्स में 3 टॉफियां हैं। इसमें ज्यादा कौन सी हैं? जी हाँ, 3 टॉफियों वाला बॉक्स। जी, ये सही जवाब है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बॉक्स पर क्लिक करें जिसमें अशिया की तादाद ज्यादा है। जी हाँ, 3 स्टार्स वाला बॉक्स, इनकी तादाद ज्यादा है तो ये सही जवाब है। ग्रेट जॉब। आइए अब इक्वल को देखते हैं। इस सवाल में एक बॉक्स में 3 सेब पड़े हैं तो इसको बराबर करने के लिए हमें नीचे दिए गई चीजों में से देखना होगा कि बराबर कैसे होंगे सेब। सोचिए इसमें क्या आएगा? जी हाँ, इसमें 3 बॉल्स आएंगे तो ये बराबर हो जाएगा। बहुत खूब, आपका जवाब सही है। अब इस बॉक्स में 2 टॉफियां हैं तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? जी हाँ, हमें 2 चाबियां इस बॉक्स में रखनी है इसको बराबर करने के लिए। वेल डन। एंड पर एक अंडा और एक टेडी बियर रह जाता है तो ये भी इक्वल को जाहिर करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम लेस के बटन पे क्लिक करते हैं।
उस बॉक्स पर क्लिक करें जिसमें अशिया कम हैं। जी हाँ, इस बॉक्स में 2 अंडे हैं। सही जवाब। उस बॉक्स पर क्लिक करें जिसमें चाबियां कम हैं। जी हाँ, इस बॉक्स में 1 चाबी है, तो आपका जवाब सही है। उस बॉक्स पर क्लिक करें जिसमें टेडी बियर कम है। जी हाँ, इस बॉक्स में 1 टेडी बियर है। वेल डन। आपने इस गेम को अच्छे से खेला है और समझ भी गए होंगे। तो अब अली संतरे खरीदेगा क्योंकि उसकी कीमत सेब की कीमत से कम है। उम्मीद है कि आपको कंपेयरिंग नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आइए अब हम एक और सिमुलेशन को देखते हैं। ऑर्डर नंबर्स, द जिंजरब्रेड मैन गेम। आइए अब हम ऑर्डर नंबर को सीखते हैं। पहले हम छोटे से बड़े यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को सीखते हैं। आइए अब इसमें 1 to 5 पे क्लिक करें। जिंजरब्रेड मैन को आपने छोटे से बड़े की तरतीब के साथ इस ट्रे में रखना है। जिंजरब्रेड मैन के बटन्स को गिने, जिसमें 1 बटन है पहले वो रखें। अब 2 बटन्स वाले को रखें। अब 3 बटन्स वाले को रखें। अब 4 बटन्स वाले को रखें और अब 5 बटन्स वाले को रखें। आइए देखते हैं कि क्या ये तरतीब सही है। जी हाँ, ऐसे हमारी तरतीब पूरी हो गई है। इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी तरतीबे सऊदी कहते हैं। वेल डन। आइए अब बड़े से छोटे यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को सीखते हैं। अब इसमें 1 से 5 तक को देखते हैं। जिंजरब्रेड मैन को आपने बड़े से छोटे की तरतीब के साथ इस ट्रे में रखना है। अब जिसमें जिंजरब्रेड मैन के बटन ज्यादा हैं पहले वो आएगा। जी हाँ, 5 बटन्स वाला जिंजरब्रेड मैन पहले आएगा। अब 4 बटन्स वाले जिंजरब्रेड मैन को रखते हैं। इसी तरह 3 बटन्स वाले जिंजरब्रेड मैन को रखते हैं। अब 2 बटन्स वाले जिंजरब्रेड मैन को रखते हैं और अब 1 बटन वाले जिंजरब्रेड मैन को रखते हैं। आइए चेक करते हैं कि क्या ये तरतीब ठीक है या नहीं। जी हाँ, ये तरतीब बिल्कुल ठीक है। इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी तरतीबे नजूली कहते हैं। वेल डन। उम्मीद करता हूं कि आपको ऑर्डर नंबर्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम आपको इस टॉपिक से मुतल्लिक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन दिखाने लगे हैं। Pick the greater number. Great job. Pick the lesser number. Great job. Pick the greater number. Great job. Pick the lesser number. Great job. Pick the greater number. Great job. Pick the lesser number. Great job. Pick the greater number. Great job. Pick the lesser number. Great job. Pick the greater number. Great job. Pick the lesser number. तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।